Good morning, dear students. Now, in today's lecture, we are in our last question, which is known as collision theory of chemical reactions. 4 marks question will ask in your board examinations that what is collision theory? Explain in brief. Okay. So, before starting collision theory, first of all, we will explain important conditions for effective collision. Important conditions for effective collisions are here. Just see. First important point: collision will appear between reactants molecule. The first important condition for the effective collision means to get product. So collision will appear between reactants molecule. Minimum kinetic energy is required. 3. Proper direction is necessary. So if we want to get product, fruitful collision is necessary. But for fruitful collision, these are the important postulates or condition for this important point. So these are the 3 important conditions for the completion of any chemical reaction. So that's why. Okay, dear students, now we will prove these 3 important conditions with the help of different type of examples. But first of all, Max Stroh and William Lewis determined or developed this theory. So first important point is here, Max Stroh and William Lewis developed this collision theory. Okay, this theory purely depends upon energetic and mechanistic aspects of reaction. We will explain energetic and mechanistic important information of all the chemical reaction on the basis of this theory. So 2 important words that we are discussing here. First word, Max Stroh and William Lewis developed this collision theory. It is purely depends upon energetic and mechanistic aspect of chemical reaction, and it is based on kinetic theory of gases. It is based on kinetic theory of gases. Okay, now we will explain this theory. In this theory, reactant molecules are assumed as a hard sphere. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ स्फीयर बात करना वो जायज़ बात है. अगर आप देखें
हम थॉमसन एटॉमिक मॉडल से अगर कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन एटॉमिक मॉडल मॉलिक्यूल्स आर स्फीयर। रुथरफोर्ड और बोहर एटॉमिक मॉडल में यही कहा जाता है। सो द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर अज्यूम्ड एज अ हार्ड स्फीयर एंड व्हेन मॉलिक्यूल collides with each other, then product will form. So this is important point. Reactant molecules are collide with each other. देखिए स्टूडेंट्स, कॉलिजन जरूरी है। कॉलिजन मतलब आप समझते हैं ना, जब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ टकराते हैं उस टक्कर को कॉलिजन बोलते हैं। सो टक्कर होनी जरूरी है। अगर टक्कर नहीं होती तो प्रोडक्टिविटी नहीं आ सकती, बिकॉज इफ वी वांट टू ब्रेक द बॉन्ड ऑफ रिएक्टेंट कॉलिजन इज नेसेसरी। सो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर अज्यूम्ड एज अ हार्ड स्फीयर। व्हेन मॉलिक्यूल कोलाइड्स विद ईच अदर देन प्रोडक्ट विल फॉर्म एंड दिस sphere will break down. Now the number of collision per second per unit volume of the reaction mixture is known as collision frequency Z। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई भी इफेक्टिव कॉलिजन के लिए कॉलिजन होना जरूरी है। उस कॉलिजन के नंबर्स, जो भी रिएक्टेंट्स के साथ कॉलिजन हो रहा है उसका जो नंबर्स है कॉलिजन्स के पर सेकेंड, उसको बोलते हैं कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। मैं एक ऐसा इक्वेशन यहाँ पर रखूंगा कि उस इक्वेशन से आप कॉलिजन फ्रीक्वेंसी और ये पूरी इफेक्टिव कॉलिजन समझ सकेंगे। देखिए पहले मैं ये रिएक्शन लिखता हूं, A प्लस बी गिव्स अस प्रोडक्ट। ओके, वी नो आर्हेनियस इक्वेशन K is equal to A into e raised to minus EA upon RT। चलिए अभी उसको हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं। रेट, K को रेट के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। ZAB into e raised to minus EA upon RT। मैं ऐसा आर्हेनियस इक्वेशन यहाँ पर लिख रहा हूं कि जिस इक्वेशन में रिएक्शन कंप्लीशन होने की सभी कंडीशन फॉलो होती है। देखिए ZAB ये ऐसा सजेस्ट करता है कि A और B दोनों के बीच में कोलिजन हो रहा है। देखिए फिर से मैं आपको इंपॉर्टेंट मैटर यहाँ पर रिपीट करवा रहा हूँ। देखिए इफेक्टिव कोलिजन की इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या है। कोलिजन विल अपीयर बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन होगा तभी रिएक्शन होगा। कोलिजन होने के लिए मिनिमम काइनेटिक एनर्जी भी चाहिए होगी और प्रॉपर डायरेक्शन भी चाहिए होगी। Max Strauss and William Lewis developed this collision theory. It is purely depends upon energetic and mechanistic aspect of reaction. Depends on kinetic theory of gases. वो क्या है यही हम समझ रहे हैं। Reactant molecules are assumed as a hard sphere. When molecule collides with each other, then product will form. The number of collision per second per unit volume of the reaction mixture is known as collision frequency Z. And this is the reaction rate is equal to ZAB into e raised to minus EA upon RT. Okay, this is the collision base. Now, if we compare this equation with K is equal to A into e raised to RT, where A is equal to collision frequency also, Arrhenius factor also, and collision frequency also. Okay, so this is A. When we compare this A with ZAB. Okay, now the second important point, this equation predict very important point। देखिए मैं आपको एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बताता हूँ कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलिजन करता है तो उसके पास अगर काइनेटिक एनर्जी होगी, मोशन होगा,
तभी कोलिजन होगा। समझे कि नहीं समझे? विदाउट मोशन कोलिजन इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब है यहां पर कोलिजन हो रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। सो अ काइनेटिक एनर्जी इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी for reactant molecule is known as activation energy. Activation energy, EA. Okay, so minimum amount of kinetic energy for reactant molecule is known as activation energy, EA. देखिए, तो पहली कंडीशन कोलिजन होना चाहिए। अगर रिएक्टेंट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में होता है तो उसके पास मिनिमम काइनेटिक एनर्जी भी होनी चाहिए। अगर समझ लीजिए कोलिजन प्रॉपर हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी भी है, तो क्या आपको लगता है कि प्रोडक्ट मिल ही जाएगी? नहीं। समझिए, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस है, बट आप देखिए 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन अवेलेबल है, पर दोनों एक दूसरे के साथ कोलिजन करते हैं पर प्रोडक्ट कुछ नहीं मिलती है। तो उसके लिए प्रॉपर डायरेक्शन भी होना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल यहां पर दिखाता हूं, चलिए समझ लीजिए 2HI को अगर हम हीट करते हैं तो वो H2 और I2 में कन्वर्ट होता है। ये HI, ये दूसरा HI। हाइड्रोजन का एटॉमिक वॉल्यूम छोटा होता है, इसीलिए मैं उसका छोटा सा यहाँ पर स्पीयर कर रहा हूँ और आयोडीन का बड़ा स्पीयर कर रहा हूँ। अभी दोनों, चलिए ये दोनों एक दूसरे के पास नज़दीक आ रहे हैं कोलिजन के लिए, ये आ गए। चलिए यहाँ पर वीक बॉन्ड हुआ। ये हाइड्रोजन का एटॉमिक वॉल्यूम छोटा, आयोडीन का एटॉमिक वॉल्यूम बड़ा, उसको बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अगर अभी आगे बढ़ता है, ये बॉन्ड वीक होता है और ये दोनों कनेक्ट हो जाता है, H2 प्लस I2, प्रोडक्टिविटी मिल गई। देखिए यहाँ पर इसी को मैं दूसरी तरीके से यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। HI अभी मैं कर रहा हूँ यहाँ पर IH, हाइड्रोजन का रेडियस छोटा, आयोडीन का रेडियस बड़ा, HI IH। ये हो गया। चलिए अभी क्या होगा, ये बॉन्ड वीक पड़ेगा और ये आ जाएगा, ऊपर से जॉइंट हो गया HI, नीचे भी जॉइंट हो गया HI। कहाँ गए? कहीं नहीं, वही का वही मिला। HI था और HI मिला। यहाँ पर रिवर्स डायरेक्शन से प्रोसेस नहीं हुआ क्योंकि मैं बोला एक वर्ड, डायरेक्शन इज नॉट प्रॉपर। सो इफ एनी केमिकल रिएक्शन विल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, एट दैट टाइम प्रॉपर डायरेक्शन इज ऑल्सो नेसेसरी। So for proper direction, Max Stroh and William Lewis give a new factor which is known as steric factor or probability factor। उसको सिंबल दिया जाता है P, प्रॉपर डायरेक्शन दिखाने के लिए। तो हमारा इक्वेशन अभी इस तरीके का हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू ZAB इंटू P इंटू E⁻⁻⁸ यहाँ पर ZAB वो कोलिजन बताता है, P प्रॉपर डायरेक्शन की बात करता है, EA काइनेटिक एनर्जी की बात होती है। कोई भी रिएक्शन कंप्लीशन के लिए 3 कंडीशन कंप्लीट होनी चाहिए, तीनों कंडीशन इस इक्वेशन से यहां पर कंप्लीट हो रही है। चलिए मैं आपको दूसरा एक एग्जांपल दिखाता हूं, आपके लिए बेहतरीन एग्जांपल, आपको जिसमें बहुत ही ग्रिप है, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए अगर इसमें प्रॉपर डायरेक्शन है और उसका डायरेक्शन का
दूसरा मैं सिमिलर वर्ड यहां पर लिख रहा हूं ओरिएंटेशन। अगर इसका प्रॉपर ओरिएंटेशन है तो क्या होगा देखिएगा, यहां पर ये रहा बी आर और यहां पर ये आया ओ एच, ये है इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। अगर इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनेगा तो फाइनल प्रोडक्ट इस तरीके की होगी, एच 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 प्लस बी आर माइनस। आप सबको मालूम है ना, ये रिवर्स डायरेक्शन में होता है। ओ एच, ये ब्रोमीन यहां था, बट अभी ब्रोमीन ओ एच आएगा तो रिवर्स से आएगा। क्यों, आपको बताता हूं। इम्प्रॉपर डायरेक्शन कौन सी हो सकती है? इम्प्रॉपर, ये इम्प्रॉपर इस तरीके की हो सकती है, ये H, ये बी आर, ये ओ एच। यहां पर से ये बी आर गया और ये सीधा ओ एच यहां पर आया, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पहले ओ एच अंदर एंटर होगा, तब उसका बॉन्ड वीक पड़ेगा, तभी यहां पर प्रोडक्ट हमें फाइनल मिल सकती है। ओके, सो दिस इज ब्रोमोमीथेन SN2 reaction, example of SN2 reaction. But in short, I want to say important point is that the direction must be in the proper way. So these are the three important conditions for the completion of chemical reaction. Again, I repeat my all the statements. First of all, important condition for effective collision. Collision will appear between reactant molecule. ये आप सबको पता चल गया। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी एंड डायरेक्शन इज नेसेसरी। हमें ऐसा एक इक्वेशन लेना है जिसमें ये सभी कंडीशन फुलफिल हो जाए। सो मैक्स स्ट्रोस एंड विलियम लुइस डेवलप दिस कॉलिजन थियरी। इट इज प्योरली डिपेंड्स अपॉन एनर्जेटिक एंड मैकेनिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ रिएक्शन। इट इज डिपेंड्स ऑन काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस। रिएक्टेंट molecules are assumed as a hard sphere. When molecule collides with each other, then product will form. The number of collision per second per unit volume of the reaction mixture is known as collision frequency. ये प्लस बी ऐसा इक्वेशन यहाँ पर आ गया जिसमें कोलिजन यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है। बट सिर्फ कोलिजन होगा इतना ही नहीं है, उसके पास मिनिमम काइनेटिक एनर्जी भी होनी चाहिए। उस काइनेटिक एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। बट मिनिमम काइनेटिक एनर्जी और कोलिजन के साथ प्रॉपर डायरेक्शन भी होना चाहिए। ये प्रॉपर डायरेक्शन का एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया। यहाँ पर एच आई की मैंने मूवमेंट चेंज कर दी। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं मिली और यहाँ पर प्रोडक्ट मिल गई। सो वी विल एड a new steric factor or probability factor for this reaction, that is probability factor is P, so ZAB into P into e raised to minus E upon RT. This is collision theory, depends upon the mechanistic and energetic information. Okay, फिर भी अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट्स आता है तो आप मुझे सीधा ही पूछ सकते हैं व्हाट्सएप करके। ओके, सो थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट्स फॉर टुडेस लेक्चर एंड वी हैव, ये हमारा चैप्टर अभी आज खत्म हो रहा है, चैप्टर खत्म हो गया। अभी मैं आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स और इसके एमसीक्यूज वगैरह है, जो कुछ भी है वो बाकी रहा है वो करवाने जा रहा हूँ, ताकि सभी इंफॉर्मेशन अच्छी तरीके से खत्म हो जाए। ठीक है, तो ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो रहा है। अभी मैं सेशन देख रहा हूँ कि कितने चैप्टर्स हमारे यहाँ पर खत्म हो गए, उसकी जो अगर लिस्ट मैं आपके साथ दे दूँ तो चैप्टर नंबर 2, 3, 4 खत्म हो चुका है, 7, 8 खत्म हो चुका है, 10, 11 खत्म हो चुका है, 12 रनिंग हो रहा है। और अब इसके बाद मैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड 9 नंबर का चैप्टर रनिंग करूंगा। तो आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 आउट ऑफ 16 9 चैप्टर्स हम आगे ले जा रहे हैं। 9 चैप्टर मेरा खत्म होगा, वहाँ पर 12 रनिंग चैप्टर वो भी कहीं आगे निकल गया। ओके, तो उसको भी देखते हुए ऑलमोस्ट 60% जितना केमिस्ट्री हमारा खत्म हो रहा है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। न्यूमेरिकल्स भी अच्छी तरीके से सोल्व करेंगे और अच्छी तरीके से आप सबको प्रिपरेशन भी करनी है। ओके, सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर टुडेज लेक्चर।